اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ایک راجا تھا اور ایک تھی رانی۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ ان کا ملک دولت سے مالا مال تھا اور خوشحال تھا۔ ان کے عالیشان محل میں دنیا کی تمام نعمتیں موجود تھی۔ بس صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اولاد کی کمی۔ لیکن آخرکار کچھ عرصے بعد گھر کا چراغ بھی پیدا ہو گیا اور سلطنت میں خوب خوشیاں منائی گئی۔ شہزادے کا نام چندر رکھا گیا۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھا۔ رانی اسے اس قدر پیار کرتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، اور چندر ساری رات اس کی گود میں سویا کرتا تھا۔ خوب چونچلوں میں پل کر شہزادہ 1 سال کا ہو گیا۔ اس کی پہلی سالگرہ کے دن خوب جشن منایا گیا۔ دنیا میں ایسا کون بڑا اور نیک آدمی ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو؟ راجا کی سلطنت کے سرحد پر ایک نہایت گھنا جنگل تھا۔ ایک بہت خونخوار ڈاکو رہتا تھا۔ وہ راجا سے صرف اس وجہ سے نفرت کرتا تھا کہ اس کی رعایا اس کے دل جان سے پیار کرتی تھی اور اسے دنیا کی ہر ایک نعمت کی خوشیاں حاصل تھی۔ بس اس ڈاکو نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس راجا کو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی بنا دوں گا۔ اس ڈاکو کے پاس دولت تو بہت تھی مگر اس کے دل کو خوشی حاصل نہ تھی، کیونکہ کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک جادوگر تھا اور اس نے اپنی تمام طاقت عظمت شیطان کا بندہ بن کر حاصل کی تھی۔ شہزادے کے پہلی سالگرہ کے دن جب سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اس وقت ڈاکو فقیر کا بھیس بدل کر محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک موتیوں کی مالا تھی۔ اس نے دربانوں سے کہا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دو تاکہ میں یہ مالا راجا کے بیٹے کی نظر کر سکوں۔ لہٰذا اس کو اجازت مل گئی۔ اندر راجا تخت پر بیٹھا تھا اور سلطنت کے امیر و وزیر چاروں طرف سے اسے گھیرے کھڑے تھے۔ ڈاکو نے جا کر وہ مالا راجا کے قدموں میں رکھ دیے۔ مالا کے موتی اس طرح چمک رہے تھے جیسے تارے ہو، اور جو کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا اس کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی۔ جب ڈاکو نے زمین کو چوما تو راجا نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ڈاکو نے جواب دیا، میں سمندر کی سلطنت سے چل کر آیا ہوں اور یہ مالا میں نے سونگری غار کی ملکہ سے حاصل کی ہے۔ اس میں ایک خاص خوبی یہ ہے کہ جو بچہ اسے پہنے گا وہ دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند بچہ ہوگا۔ راجا نے ڈاکو کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ اسے خوب اچھے اچھے کھانے بیٹھ کر کھلاؤ، بہت سی اشرفیاں بھی دو، اور اگر اس آدمی کی کوئی اور خواہش ہو تو وہ بھی پوری کرو۔ ڈاکو نے کہا، میری غذا صرف درختوں کی جڑیں اور سبز بوٹیاں ہیں، اور میں شاہی دسترخوان پر نہیں کھانا چاہتا، نہ مجھے روپیے پیسے سے پیار ہے، لیکن راجا صاحب اگر تم مجھ پر مہربان ہو تو میری ایک درخواست منظور کرو۔ مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ شہزادے کو جی بھر دیکھ لینے دو۔ بادشاہ نے ڈاکو کی درخواست منظور کر لی اور نوکر کو اس کے شہزادے کے کمرے میں بھیج دیا، اور نوکر اس کو شہزادے کے کمرے میں لے گئے جہاں رانی اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس ڈاکو نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت عورت کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب میں سمجھ گیا کہ راجا کی زندگی میں اس طرح خوشی کیوں ہے۔ اگر یہ عورت میری بیوی ہو تو مجھے بھی اتنی ہی خوشیاں حاصل ہو جائے گی۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ وہ اپنے زور سے بچے کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا تاکہ وہ اس مالا کو کبھی پہن ہی نہ سکے، لیکن اس کی تمام توجہ رانی کی طرف لگ گئی۔ جس کام کے لیے آیا تھا اس کا اسے خیال ہی نہ رہا۔ جب اس نے بچے کو دعا دی اور اس کی تعریف کی تو رانی ذرا مسکرائی۔ یہ دیکھ کر بدمعاش ڈاکو نے سوچا کہ اس کو ابھی لے جاؤں تو اچھا ہے۔ ڈاکو کے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا۔ اس نے نیچے سے جادو کی چھڑی نکالی اور اسے ایک دفعہ ہلایا۔ فوراً تمام نوکر چاکر گہری نیند میں سو گئے۔ اس کے بعد چھڑی کو 2 دفعہ ہلایا، رانی ایک چھوٹا کالا کتا بن گئی۔ پھر 3 دفعہ ہلایا اور وہ کتا سو گیا۔ اس نے اس کتے کو اپنے گود میں لے لیا اور کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ محل سے نکل کر پھاٹک کے راستے وہ شہر میں جا پہنچا۔ وہاں سے خوشی خوشی اس نے جنگل کی راہ لی۔ شہر سے باہر نکل کر اس نے اپنے جادو کی چھڑی ہلائی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے راستے میں اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ جا کر اس نے سوچا، جب تک رانی میری بیوی منہ منظور نہ کرے گی میں اسے بلند برج میں قید رکھوں گا۔ ڈاکو کے محل سے چلے آنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد راجا رانی کے کمرے میں پہنچا کہ وہ خوبصورت موتیوں کی مالا رانی کو دکھائے، مگر وہاں جا کر دیکھا کہ سب لونڈیاں اور باندیاں فرش پر گہری نیند سو رہی ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ شہزادہ بھی سویا پڑا تھا، مگر جس بات سے اس کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ یہ تھا کہ رانی اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا مگر سب بے فائدہ۔ باندیاں اسی طرح پڑی سو رہی تھی اور جگانے سے بھی نہیں جاگ رہی تھی۔ آخرکار راجا رانی کے کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ بچے پر جھکا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت ایک موتی شہزادے کے چہرے کو چھو گیا اور وہ فوراً جاگ اٹھا۔
वो मुस्कुराने लगा। इससे राजा को मालूम हो गया कि यह जादू की माला है। इस तरकीब से इसने तमाम बादियों को माला छू छू कर जगाया। कांपते कांपते इसने दरियाफ्त किया कि रानी कहाँ चली गई, मगर वो कुछ ना बता सके। अलबत्ता सबसे बड़ी बांदी ने कहा, हुजूर, जब से इस फकीर ने अपनी छोटी सी काली छड़ी हवा में हिलाई, हमें मालूम ही नहीं किसके बाद क्या हुआ। हमें इस वक्त नींद आ गई और नींद के आते ही हम सब कुछ भूल गए। फिर राजा ने इन सिपाहियों से पूछा जो शाही महल के सदर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, हमने इस फकीर को मोतियों की माला हाथ में लिए महल में दाखिल होते देखा था। जब वो वापस गया तो इसकी गोद में एक छोटा सा काला कुत्ता था जो सो रहा था। अब राजा समझ गया कि वो फकीर के भेष में कोई जादूगर था जो इसकी प्यारी और खूबसूरत रानी को उड़ा कर ले गया। इससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और बादशाह चीख चीख कर रोने लगा। राजा ने रानी की तलाश में बहुत से बहादुर जंगजू चारों तरफ रवाना किए, मगर इनमें से कभी कोई वापस न आया। राजा के 6 भाई थे, वो एक एक करके रानी को ढूंढने चले गए, लेकिन इनमें से भी कभी कोई वापस न आया। अब दुनिया में जिस कदर तकलीफ राजा को थी, इतनी और किसी को नहीं थी। राजा का वक्त रोते धोते कटता रहा। हर रोज बहादुर सिपाही रानी की तलाश में आ जाते, मगर बेसुध। आखिर जब 14 साल का अरसा गुजर गया तो राजा ने कहा, अब रानी कभी वापस नहीं आएगी और अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता। शहजादा चंद्र अब तक एक बहादुर नौजवान बन गया था। एक रोज इसकी दादी ने इसे जादूगर के महल में आने, इसके लिए मोतियों का माले का तोहफा लाने और इसकी माँ को उड़ा ले जाने का सारा किस्सा सुना दिया। बस फिर क्या था, चंदर अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, वो माला मुझे पहनने को दे दे अब्बा हुजूर। जो जादूगर ने आपकी खिदमत में नजर की थी, तो मैं जाकर कहीं अपनी माँ को तलाश करूं। राजा ने वो मोतियों की माला एक जगह छुपा रखी थी। पहले इसका दिल माला देने को न माना। इसे डर था कि कहीं वो माला इसके बेटे को नुकसान न पहुंचाए। शहजादा चंद्र के बेहद असरार पर आखिरकार माला देनी ही पड़ी। चंद्र ने माला गले में पहन ली। बस माला पहनने की देर थी, इसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल तब्दील हो गई। अब वो न सिर्फ लड़का रहा बल्कि एक ताकतवर जवान बन गया। चेहरे से बहादुरी और दानाई टपकने लगी। आवाज में ऐसा असर आ गया कि जो सुनता इसके हुक्म की तामील करनी ही पड़ती। वो बोला, मैं अकेला ही जाऊंगा और जब तक अपनी माँ को साथ ना ला सकूंगा हरगिज वापस नहीं आऊंगा। राजा ने इसको दुआ देकर जाने की इजाजत दी। चंदर को अगरचे कामयाबी का पूरा पूरा भरोसा था, मगर इसने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह जाहिर होता कि इसे कामयाबी की उम्मीद है। चंदर चलता चलता पाए तख्त पीछे छोड़ गया और एक जंगल में जा पहुंचा। बाज लोग इससे कुछ फासले पर पीछे पीछे चले आ रहे थे। अचानक एक बड़ा भारी शेर शहजादे के सामने आ गया, लेकिन शहजादा बेखटक इसकी तरफ बढ़ता गया। चौपाए को अपना रास्ता छोड़कर दुम दबाकर भाग जाना पड़ा। जब यह खबर गमजदा राजा के कानों में पहुंची तो खुश होकर बोला, शगुन तो अच्छा है, मगर अभी भी बहुत बड़े बड़े खतरों का सामना करना होगा। शहजादा आगे ही आगे बढ़ता रहा, मगर लोग अब इसके पीछे पीछे जाते घबराते थे। जंगल और मैदान पीछा छोड़ता हुआ शहजादा एक सरसब्ज पहाड़ पर जा पहुंचा। थकान की वजह से वो इस कदर चूर हो गया था कि पहाड़ पर लेट गया और लेटते ही इसे नींद आ गई। मालूम नहीं वो कितनी देर सोया होगा, मगर इसकी आंख सरसर की धीमी आवाज से खुल गई। राजा ने देखा कि सामने एक दरख्त पर एक अकाब का घोंसला है और एक छोटा सा काला सांप इस दरख्त के तने पर चल रहा है। अजकाब के बच्चों ने सांप को अपनी तरफ आते देखा तो मारे खौफ के शोर मचाने लगे। चंदर फौरन आगे की तरफ झपटा और तलवार सोचकर ऐसा हाथ मारा कि सांप 2 टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरा, मगर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों टुकड़े फिर मिल गए और सांप ने फिर दरख्त का रुख किया। चंदर बड़ा हैरान हुआ। इसने हार न माना। तलवार खींचकर अब इसके सांप के 3 टुकड़े कर दिए, मगर फिर क्या देखता कि ये तीनों टुकड़े आपस में फिर मिल गए। शहजादे ने देखा तो इसने एक बार फिर सामने का सर काटकर एक गड्ढे में दबा दिया। अब सामने का धर बेजान पड़ा रहा और इसकी ज़ियाफत उड़ाने के लिए चींटियां वहां आ जमा हुई। इतने में अकाब के बच्चों की माँ भी आ गई। जब उन्होंने देखा कि चंदर ने इनके बच्चों की जान बचाई है तो वो कहने लगे, तू बड़ा बहादुर और दाना शहजादा है। यह खौफनाक काला सांप हमेशा हमारे बच्चों को मारकर खा जाया करता था, लेकिन अब हमें यह न सताएगा। ऐ शहजादे, तुम्हें जिस वक्त भी हमारी मदद की जरूरत हो फौरन हमें बुला लेना, हम तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे। चंदन ने अकाबों का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। बहुत दूर आगे जाकर वो एक बार फिर सो गया।
जब कई घंटे के बाद वो उठा तो किसी के कहलाने की आवाज इसके कानों में पहुंची। उसने देखा एक जंगली हिरण के सिंग एक झाड़ी में फंस गए हैं और इसकी आंखों से आंसू जारी है। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और झाड़ी को काटकर उस गरीब जानवर को दुख से आजाद करा दिया। तब हिरण ने इससे कहा, तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, क्योंकि अगर तुम मुझे ना बचाते तो मैं जल्द ही कोई शेर आ इधर निकलता और मुझे चीर फाड़ कर खा जाता। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगी। शाम होने वाली थी कि इसे एक मकान नजर आया। शहजादा मकान के अंदर चला गया। वहां देखा कि एक कमरे में एक बुढ़िया अकेली बैठी है। जब वो इसके करीब पहुंचा तो इसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और बोली, खूबसूरत नौजवान, क्या तुझे यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? यह मेरे बेटे का मकान जो डाकू के सरदार का मालिक है। वो डाकुओं का सरदार एक बड़ा जादूगर है। अगर वो तुझे देख लेगा तो तुझे पत्थर या दरख्त बना देगा। बहुत से शरीफ आदमियों को जो इस खूबसूरत रानी की तलाश में आए थे, इसने पत्थर या दरख्त बना दिया है। शहजादा ने कहा, चूंकि तेरा दिल इस कदम नरम है और तू मुझ पर मेहरबान भी है, इसलिए मुझे उम्मीद है तू जरूर मेरी हिफाजत करेगी। इस बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? चंदन ने जवाब दिया, मैं रानी का बेटा हूँ, जिसे जादूगर ने उठा लाया है। मेरा बाप इसकी जुदाई के गम में बूढ़ा हो गया है। मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 1 साल की थी जब यह बदमाश मेरी माँ को कुत्ता बनाकर यहाँ ले आया, मगर अपनी माँ की शक्ल और सूरत में आज तक नहीं भूला, क्योंकि हर महीने वो मुझे ख्वाब में नजर आती है, कभी मुस्कुराती हुई, कभी ज़ारो कत्तार रोती हुई। बुढ़िया बोली, वो हर वक्त तुझे याद कर कर रोती रहती है। मुझे यकीन हो गया कि तू जरूर इसका बेटा है, क्योंकि इसने मुझे बताया था कि वो हर महीने तुझे ख्वाब में देखती है। बुढ़िया ने शहजादे को खाना खिलाया। इसके बाद इसे एक लड़की की पोशाक पहना दी और शहजादा एक खूबसूरत लड़की बन गया। जब बुढ़िया का बेटा घर आया तो इसने पूछा, ये नौजवान औरत कौन है? बुढ़िया ने जवाब दिया, यह बहन की लड़की है और जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती यह हमारे साथ ही रहेगी। बेटा बोला, अगर डाकू ने इसे देख लिया तो मुमकिन है जान से ना मार डाले। बुढ़िया बोली, ये तमाम बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसके लिए तुम्हारे आका से खुद कहूंगी। अगले रोज चंदन बुढ़िया के साथ बाग में चला गया। जब डाकू नजदीक आया तो बुढ़िया इससे कहने लगी, मेरी भतीजी कुछ अरसे के लिए मेरे पास आई है। इसे एक जादू का अमल याद है और एक ऐसी बूटी मालूम है, अगर इसे कोई औरत जरा सा चख ले तो जिस मर्द पर सबसे पहले इसकी निगाह पड़े, इसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। डाकू बोला, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर मेरा खूबसूरत कैदी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अपनी भतीजी से कहो कि वो मोहब्बत की बूटी तलाश करके मेरे पास ले आए। वो बूटी तो यह लड़की रानी को अपने हाथ से खिलाएगी, इसलिए पहले इसे जाकर कैदी पर अपना एतबार जमाना होगा। डाकू ने लड़की को हर रोज बर्ज में रानी के पास ले जाने की इजाजत दे दी। अगले रोज चंदन लड़की के भेष में वहां पहुंचा। रानी ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और बोली, तो मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है, क्योंकि तेरी शक्ल और सूरत मेरे बेटे से बहुत मिलती है, जिसको अक्सर मैं ख्वाब में देखा करती हूँ। इस पर चंदन ने रानी को असल हाल बता दिया। रानी ने इसे गले लगाया और खूब रोई। चंदन ने कहा, अम्मा, तुम्हें इस जादू की कैद से छुड़ाने आया हूँ। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो मैं इस बदमाश जादूगर को जल्द नीचा दिखा दूंगा। माँ बेटा हर रोज सुबह मिलते थे। एक रोज चंदन ने अपनी माँ से कहा, जब जादूगर तुमसे मिलने आए तो तुम इससे कह देना कि अगर तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो तो मैं तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ। इससे वो तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। इसके बाद यह मालूम करने की कोशिश करना कि इसकी ताकत का सबब क्या है और इसकी मौत किस तरह हो सकती है। रानी ने बेटे की बात मान ली। उधर चंदन ने जादूगर से कह दिया कि रानी को प्रेम की बूटी खिला दी है। यह सुनते ही वो बर्ज में जा पहुंचा। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर कुछ मोहलत मुझे दे दो तो इसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। यह सुनकर जादूगर की खुशियों का ठिकाना न रहा। जादूगर चाहता था कि रानी इस वक्त शादी कर ले, मगर वो कहती थी कि जरा ठहरो और पहले मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दो। जब जादूगर ने वादा कर लिया तो रानी ने पूछा, क्या तू अमर है? क्या तुझे कोई नहीं मार सकता? क्या तू इतना बड़ा जादूगर है कि कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? डाकू ने गौर से रानी को देखा और पूछा, तू मेरे भेद क्यों मालूम करना चाहती है? रानी बोली, जान के राजों से वाकिफ होना जरूरी है ताकि वक्त पर इसकी हिफाजत की जा सके। जादूगर रानी के झांसे में आ गया। इसने बता दिया कि मेरे जान एक सब्ज रंग के तोते में है, जिसकी हिफाजत बहुत से राक्षस करते हैं। वो तोता दरख्तों की एक जिंद में रहता है जिसके चारों तरफ आग का दरिया बहता है। अगर कोई शख्स राक्षसों के हाथ से बच निकले तो आग इसको जलाकर राख कर दे। तोते के पास ही पानी से भरे हुए 7 मटके रखे हैं। जब तक वो मटके भरे हैं
किसी की मजाल नहीं कि वो तोते को उठा सके। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, तोते तक पहुंचना और तेरी जान लेना इंसान के बस की तो बात नहीं। जब चंदर अगली मर्तबा अपनी मां से मिलने गया तो इसने सारा हाल चंदर को सुना दिया। चंदर ने अपनी माँ से कहा, मैं इस वक्त से इस तोते को लेने के लिए रवाना होता हूँ। माँ ने इसको बहुत मना किया, मगर चंदर बोला, मोतियों की माला की मदद से मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम इसकी कैद से छुटकारा नहीं पा सकोगे। इस वक्त तक वो बहादुर भी अपनी असली शक्ल और सूरत में ना आ सकेंगे जो तुम्हारी तलाश में यहाँ पहुंचे थे, और अब ईंट पत्थर और दरख्त बने पड़े रहे। अपनी माँ से बातें करने के बाद वो इस रोज शाम के वक्त रवाना हो गया और सारी रात चलता रहा। जब सुबह हुई तो इसे इस हिरन का ख्याल आया जिसने इसे झाड़ी से निकाला था। इसने बुलंद आवाज में कहा, वो तेज रफ्तार हिरन मेरी मदद के लिए आ जा। शहजादे की जबान से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो हिरन आ पहुंचा और बोला, हुक्म कीजिए। शहजादे चंदन ने कहा, मुझे इस जंगल में ले चल जहाँ आग का दरिया बहता है और राक्षसे एक सब्ज तोते की हिफाजत करते हैं। मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं आपको इस जंगल की सरहद पर ले जाकर छोड़ दूंगी। शहजादा चंदन इसके पीठ पर सवार हो गया। वो तेज रफ्तार हिरन 3 दिन रातें लगातार चलता रहा और एक पल के लिए भी ना रुका। आखिर बहुत दूर से जंगली मैदानों, झीलों, दरियाओं से गुजरकर चौथे दिन सुबह ही सुबह एक बड़े जंगल के सिरे पर जा पहुंचा और बोला, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन आपके वापस आने तक मैं यहाँ इंतजार करूंगी। शहजादा बोला, काश कि अब वो आकाब यहाँ मौजूद होता, क्योंकि इस वक्त मुझे इसकी जरूरत है। शहजादा के कहने की देर थी। दोनों परे और चंदर से बोले, शहजादा साहब, आप सांप को मारा था, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। चंदर ने कहा, मुझे दरख्तों के इस जंगल में ले चलो जिसके गिर्द आग का एक दरिया बहता है और जिसमें वो सब्ज रंग का तोता रहता है। आकाब ने कहा, अपनी पेटी के साथ एक रस्सी बांध लीजिए, इसके दोनों सिरे हम अपनी चोंचों में ले लेंगे। उन्होंने चंदर को इस जगह पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर पहले तो चंदर सातों मटके के पानी को उलट दिए, इसके बाद तोते को उठा लिया। राक्षसे चीखे मारे और शोर बचाने लगे। जब तक वो आग में से निकलकर वहां पहुंची, आकाब शहजादे को ले उड़ा और राक्षसों ने इसका पीछा किया, मगर आकाबों ने शहजादे को लाकर हिरन के पीठ पर लाके बैठा दिया। हिरन इसे लेकर इतनी तेजी से भागा कि राक्षसे इसकी धूल को भी ना पकड़ सके और हिरन ने शहजादे को ले जाकर जादूगर के महल में पहुंचा दिया। उधर जादूगर को मालूम हो गया कि मेरी जान खतरे में। इस वक्त वो इस ब्रज के पास खड़ा था जिसमें रानी कैद थी। तोते को हाथ में पकड़कर शहजादे ने इससे कहा, अब तो जो मैं कुछ कहूंगा तुझे वही करना पड़ेगा। जादूगर बोला, ऐ अक्लमंद नौजवान, यह तोता मुझे दे दे, तू जो कुछ मांगेगा वो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। जादूगर यह कहकर शहजादे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। चंदन ने हुक्म दिया, पीछे ही खड़े हो जाओ। फिर तोते की दुम से एक पर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जादूगर कांप उठा मगर खड़ा रहा। चंदर फिर बोला, अच्छा तो पहले इन बहादुरों को आजाद कर दो जिनको तूने पत्थर और दरख्त बना रखा है। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी चलाई और इसी वक्त हर तरफ से बहादुर उठ खड़े हुए। जादूगर ने कहा, अब तुम मुझे तोता दे दो। चंदर हंसा। जादूगर ने फिर जादू की छड़ी उठाई मगर शहजादे ने तोते का दाया पर निकाल दिया। इसी वक्त जादूगर का दाहिना बाजू टूट कर जमीन पर आ पड़ा। अब इस बदमाश आदमी ने अपने जादू की छड़ी से अपनी बाई हाथ में ले ली, मगर चंदर ने तोते का बाया पर भी उखाड़ दिया और इसी वक्त जादूगर का बाया बाजू भी जमीन पर आ गिरा। अब जादूगर क्या कर सकता था। इसने रो रो कर कहा, मेरा तोता मुझे दे दो। चंदर बोला, पहले तो यह कहो कि तुम्हारी तमाम दौलत का मालिक मैं हूँ। जादूगर बोला, अच्छा, जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा है, अब तोता मुझे दे दो। हाँ हाँ जरूर दे दूंगा, यह कहा और चंदन ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। इस वक्त जादूगर जमीन पर जाके बेजान हो गया और वो मर गया। तब शहजादा ब्रज में आया और रानी फिर इसने अपने मुल्क के तमाम बहादुर को इकट्ठा किया जिन्हें इस बदमाश जादूगर ने दरख्त और पत्थर बना डाला था। इसके बाद जादूगर का खजाना लेकर सब के सब चंदर के बाप के पास पहुंचे। राजा और रयाया दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजा फिर जवान हो गया मगर इसने अपना तख्त और ताज अपने बेटे को सौंप दिया और चंदर खुशी खुशी बाप की जगह हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।